چند دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میری غیر محسوس طریقے سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہوٹل کے لاہی میں سفارتخانے، شیر پنجاب ہوٹل، غرض ہر جگہ آدمی میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ میں نے اپنا پیچھا کرنے والوں سے جان چھڑانے کی بجائے ان کی اصلیت اور ارادے جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ میں نے ایک دن سفارتخانے جانے کے لیے سائیکل رکشہ لیا، مگر سفارتخانے کے آدھے راستے جانے کے بعد میں نے اسے بازار جانے کا کہہ دیا تو اس نے رکشہ واپس بازار کی طرف موڑ لی۔ پیچھا کرنے والوں نے بھی اپنے رکشے میرے پیچھے موڑ لیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میری نگرانی کی جا رہی ہے۔ نگرانی کرنے والے 9 افراد تھے، جن میں 4 بنگالی اور 5 دوسرے قد کاٹ کے اونچے لمبے تھے۔ میں نے اپنا پسٹل جو میرے پاس ہی ہوتا تھا ساتھ میں ایک کلہری بھی اپنے کمر کے ساتھ باندھنا شروع کر دی۔ ایک دن میں MBC جاتے ہوئے راستے میں ہی رکشہ روک لیا۔ پیچھا کرنے والوں نے بھی اپنے رکشے روک لیے۔ میں رکشے سے اتر کر ان کے پاس گیا اور کرختی سے پیچھا کرنے والوں کے وجہ پوچھی۔ وہ اس اچانک صورتحال کے لیے تیار نہ تھے، لگے ادھر ادھر کی کرنے میں ککری نکال کر حملہ کرنے کے انداز میں پکڑ لی اور کہا کہ آئندہ اگر میرا پیچھا کیا تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو تمہارے 9 ساتھیوں کا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے رکشے واپس موڑ لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی میرا پیچھا نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا تھا کہ وہ سفارتخانے کے نچلے درجے کے ملازم تھے اور جو وہ جاننا چاہتا تھے انہوں نے اس کا چہرہ ہو گیا تھا۔ اسی شام ہوٹل کے لابی میں ایسے 3 افراد کو بیٹھے دیکھا جو میری نگرانی کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ میں سیدھا ریسیپشن پر گیا اور ریسیپشن سے کہا کہ اگر یہ آپ کا 5 اسٹار ہوٹل ہے تو پھر غیر ضروری افراد یہاں پر کیوں آتے ہیں جو یہاں رہتے ہی نہیں؟ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے تو پھر اس کو 5 اسٹار نہ کہے اور ساتھ اس کا کرایہ بھی کم کر دے۔ ریسیپشن حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا وجہ بنی جو آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں نے 3 افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہتے اور میں انہیں 3 دن سے ہر روز یہاں لائبی میں بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ وہ یہاں کیا لینے آتے ہیں اور کسی سے ملنا ہے؟ انہیں ریسیپشن سیدھا ان 3 افراد کی ٹیبل پر گیا اور پوچھا کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے تو وہ لوگ کوئی مناسب جواب نہ دے سکے۔ منیجر ریسیپشن نے گیٹ پر گارڈز کو بلایا اور کہا کہ ان دونوں کو دھکے مار باہر چھوڑاؤ۔ گارڈ نے انہیں گیٹ سے آؤٹ کر دیا۔ ساتھ میں بھی باہر آ گیا اور ان تینوں سے کہا کہ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تم لوگ میری نگرانی کر رہے ہو۔ میرے ہوٹل میں آنے جانے کے اوقات ملنے والے کون کون ہیں سب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ پہلی بار ہے، اگر آئندہ مجھے نظر آئے تو گولیوں سے بون دوں گا۔ وہ اس کے بعد نظر نہ آئے لیکن اس کے بعد بھی میری نگرانی ختم نہ ہو۔ اس کے بعد منجے ہوئے تجربہ کار جاسوس میرے پیچھے لگائے گئے۔ یہ سب بھی بھارتی سفارتخانے کی طرف سے تھا۔ بھارت کی نسبت یہ صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہاں ہم چھپ کر وار کرتے تھے جبکہ یہاں پر 2 دشمن آمنے سامنے تھے۔ دونوں میں فرق صرف یہ تھا کہ بھارتی میرے مقابلے پر سینکڑوں لا سکتے تھے جبکہ میں ان کے مقابلے کے لیے اکیلا تھا۔ میرے وسائل محدود، جس میں ایک پسٹل اور ککری تھی، جبکہ میں اللہ کی مدد کے سہارے ان کی دو بدو آ گیا۔ اب بھارتی سفارتخانے ایک نئی چال چلی۔ مجھے پانسنے کے لیے انہوں نے اپنا نہایت تجربہ کار بھارتی ایجنٹ کو میرے پیچھے لگایا۔ یہ ایجنٹ خفیہ سرگرمیوں کو کور دینے کے لیے نیپال میں ایک کاروباری کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اس کی کٹھمنڈو میں مین روڈ پر راجہ بازار میں 2 دکانیں تھیں۔ ایک دکان دیوی کی مال نما عمارت کے ساتھ جبکہ دوسری کشمیریوں کی بستی کے قریب تھی۔ دیوی کی محل کے قریب والی جنرل سٹور اور مرچنٹ کی، جبکہ کشمیری بستی کے پاس والی کشمیری شالوں والی تھی۔ اس کے متعلق مجھے ملنے والی مہاجرین نے بتایا تھا یہ شخص مہاجروں کا بڑا ہمدرد بنا ہوا تھا۔ کہتے تھے کہ یہ تو بھارتی ہندو مگر بڑا دردمند انسان ہے۔ جنرل مرچنٹ کی دکان پر صرف رجسٹریشن کارڈ نمبر دیکھ کر مہاجروں کو مختلف برانڈ کی سگریٹ، چنگم اور دوسری اشیاء تھوک سے بہت کم قیمت پر بیچنے کو دیتا ہے۔ لکڑی کے ٹرے جس سے چمڑے کی بیلٹ گلے میں ڈالنے کے لیے بیلٹ بھی فری دیتا ہے۔ مہاجر ان میں مختلف سامان رکھ کر شہر کے مختلف علاقوں خصوصاً ان گھٹیا اور کم کرایہ والے گیسٹ ہاؤس کے قریب یہ سامان بیچتے ہیں جہاں مغرب سے آنے والے ٹھہرتے ہیں۔ وہ صحیح ضرورت مند مہاجروں کی مدد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ مہینے میں 1-2 بار بھارت جاتا ہے اور فروختگی کے لیے سامان لاتا ہے۔ جب سے اسے آپ کے مہاجرین میں کمبل اور پیسے تقسیم کرنے کا پتہ چلا ہے وہ آپ کا پرستار بن گیا ہے۔ ہر وقت آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ سے ملنے کا بے حد شائق ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بھارتی ہندو ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اچھا سلوک نہ کریں، حالانکہ میں اپنے ملک بھارت کے مشرقی پاکستان میں کی گئی ذلیل حرکات کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔
माजिरों ने कुछ इस तरह इसके कसीदे पढ़े कि मैं उसे मिलने को तैयार हो गया और एक शाम उसे अपने होटल में मदऊ कर लिया। वो राइट टाइम पर आ गया और मैं इसका कॉफी शॉप में ले गया। शक्ल वो सूरत वाला बोले जैसे वो भारत पंजाब का रहने वाला लगता था। इसने बताया कि इसका नाम विजय कुमार है और वो अम्बाले का रहने वाला शरणार्थी माजर है। तकसीम हिंद से पहले वो गुजरानवाला महल गुरु नानक पुरा में रहता था। वही उसने मैट्रिक पास किया और अपने वालिद साहब के साथ कारोबार में लग गया। वालिदैन का एक लौता बेटा था और लाडला भी। तकसीम हिंद के बाद हम लोग अम्बाला आ गए। वालिद साहब के कारोबार ने यहाँ पहुँचकर बहुत तरक्की कर ली। अम्बाला में ही उसने शादी की और 2 लड़के पैदा हुए। इसका घराना निहायत खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। गुजरानवाले से आते हुए पिताजी के मुसलमान दोस्तों ने पिताजी की बहुत मदद की। सिवाय दुकान और मकान के सब सामान पिताजी से मुसलमानों ने खरीद लिया और इसी सरमाए से पिताजी ने कारोबार शुरू कर दिया। आज से 6 साल कबल तीर्थ की यात्रा से वापसी पर इसके घर वालों का एक्सीडेंट हो गया। सब एक्सीडेंट में मारे गए, सिर्फ वो जिंदा बचा क्योंकि वो यात्रा पर अपने कारोबार की देखभाल की वजह से नहीं गया था। इतने बड़े हादसे के नतीजे में मैं अपने हवास को बैठा। आखिर कई माह के इलाज के बाद मैं ठीक हुआ। अम्बाल अब काटने को दौड़ता था। आखिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि काठमांडू चले जाओ तो तबीयत बैठ जाएगी। चुनांचे में काठमांडू चला आया और फिर यही का होकर रह गया। अम्बाला से कारोबार क्लोज किया और यहाँ 2 दुकानें लिए और रोजगार कमाना शुरू कर दिया। इसने अभी तक दोबारा शादी नहीं किया। अपनी यादों को बहलाने की कोशिश कर रहा हो। जब यहाँ माजर आए तो उनकी कसिम्प्री सी देखकर अपना माजी याद आ गया। लिहाजा मैंने इनकी मदद करने का फैसला कर लिया। मैं सबकी हेल्प तो नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने इनको फ्री लगाकर चीज़ें बेचने की तरगीब दी। उनको अशे तूक से भी कम कीमत बेच देता हूँ, जिसे ये सील करके 25 या 30 रुपये रोज़ाना कमा लेते हैं। जब आपके मुतल्लिक़ सुना कि आपने माजिरों की माली इमदाद की है तो आपसे मिलने का इश्तियाक़ पैदा हुआ और आपकी चरणों में बैठा हुआ वो वजह ने अपनी दास्तान इतने दुख भरे अंदाज में सुनाई। फिर अपने ज़ख्मों को याद करके माजिरों की हेल्प करना और इनको रोज़गार देना और इनकी माली इमदाद करना वाकई मजहब से हटकर एक काबिल तहसीन बात थी। और वो ये खिदमत 3 साल से कर रहा था। लिहाजा मैं इसकी दुकान पर गया, माजिरों में सामान तकसीम करते देखा, इनको कारोबार की तलकीन करते देखा। इसी तरह कई बार मैं इसकी दुकान पर गया और होटल इनवाइट किया। इस तरह हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। शाम का वक्त काटना मेरे लिए बहुत तकलीफ देह होता था। मोहसिन भी मेरा अच्छा दोस्त न बन सका। इसने भी अपने आप को सिर्फ मिशन तक महदूद रखा और बहुत से एजेंट इसने बेनकाब किए। इस कमी को विजय ने पूरा किया। हमारी शामें अक्सर इकट्ठे गुजरने लगे। एक बार वो इंडिया माल लेने गया तो वापसी पर मेरे बहुत सारे काजू ले आया। मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मुझे काजू पसंद है, तो उसने कहा कि एक दिन बातों बातों में आपने कहा था कि मैं काजू खाते हुए नहीं थकता, सो इसलिए ले आया। इसने कहा कि वो ये सब सामान लखनऊ से खरीदता है और रक्सू तक ट्रेन में आता है, आगे रक्षक पर लेकर आता है। मैंने कभी इससे किसी भी मामले पर बात नहीं किया और न कभी इसने मैं जो भी बात करता हूँ मेरे हाँ में हाँ मिलाता। मैं भी बहुत ज़ख्मी था और रूहानी तौर पर भी। भारत में पकड़े जाने के बाद मुझ में तशद्दुद की वजह से पहले वाली बात नहीं रही थी। विजय ने अपनी माजी मेरे सामने खोल कर रख दिया था, लेकिन इसने मेरे मुतल्लिक़ कभी कुछ नहीं पूछा था। उसकी इस खूबी की वजह से मैं उसके और करीब हो गया। एक शाम विजय मेरे पास आया और इधर उधर की बातों में उसने कहा कि अम्बाला से इसके कुछ दोस्त काठमांडू आए हैं, मगर वो कट्टर हिंदू है, वो यही होटल में ठहरेंगे। अगर इनसे आपका आमना सामना हो जाए तो उनके मेरे मुतल्लिक़ न बताएगा, बल्कि लाताल्लुक़ी और बेपरवाही से पास गुजर जाएगा। मेरे इस ये खूबी देखकर इसका मुतारिफ हो गया, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे खिलाफ साजिशें तैयार हो रही है और विजय इस साजिश का मरकजी किरदार अदा कर रहा है। विजय के दोस्तों की मौजूदगी के दौरान मैंने अपने सफारत खाने के जनरल अटैची को कॉल की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ अहम मालूमात मिली है, इनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एम्बेसी में अगर इनसे मिलूँ तो बाकी अफराद चौकन्ना हो जाएंगे। मेरा होटल भी इस मुलाकात के लिए मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरी निगरानी हो रही है। मिलिट्री अटैची ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया कि ऐसी सूरत हाल में बेहतरीन जगह चिंगवा चाइनीज़ होटल बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि आज रात 8 बजे वही आ जाओ। ये रेस्टोरेंट काठमांडू के पोश इलाके में था। मैं रात 8 बजे वहाँ पहुँच गया और अटैची साहब भी तकरीबन इसी टाइम वहाँ पहुँचे। हम एक हब की बन में बैठ गए और खाने का ऑर्डर दे दिया।
मैंने मोहसिन के इकट्ठी करदा मालूमात उन्हें बताई और कहा कि पाकिस्तान भेजने के लिए कवर की एक माजिरों की जासूसी टीम पाकिस्तान भेजी जा रही है और कई मकानात में उनकी ब्रेन वॉशिंग का सिलसिला जारी है। मेरा प्लांटेड आदमी खुद ऐसी कई जगहों पर शामिल हुआ है जहाँ पर यह काम हो रहा है। मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि जब दोबारा अफगान एयरलाइन का सिलसिला शुरू होगा, जासूसों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुँच जाएगी। मिलिट्री अटैची ने मेरी बात गौर से सुनी और कहा कि मेरे अपने मखबरों ने भी मुझे ऐसी इत्तलात दी है। मैं ये भी जानता हूँ कि माजिरों के बेस में छुपे मकतबानी के 8 जासूस को ठिकाने लगाने में आपका हाथ है। इन 8 से तो हमारी जान छूट गई, मगर बाकी इन ब्रेन वॉश करने वालों के मतलब हम जानकर भी कुछ नहीं कर सकते। इन माजिरों के भारत में क़याम के दौरान इनकी किसी मजबूरी के तहत भारतीय इंटेलिजेंस ने उनको इस काम पर मजबूर किया है और इनकी माली इमदाद भी वही कर रहे हैं। मिलिट्री अटैची ने अपनी मजबूरी भी बता दी, उसे अपना हर काम कानून के दायरे में ही रहकर करना पड़ता था। मिलिट्री अटैची ने ये वादा ज़रूर किया कि जो ही कोई नई बात इसके सामने आई तो मुझे ज़रूर बता देगा। हमारी ये मीटिंग ख़त्म हुई तो मेरे अफसरदा दिल लिए वापस होटल आ गया। मेरे सामने मेरे बच्चे कुछ घर को जाड़ डालने के असबाब हो रहे थे और मैं अकेला कुछ न कर सकता था। इसी सूरत हाल में मुझे कानून के दायरे में रहकर काम करने वालों की नहीं बल्कि ऐसे अफराद की ज़रूरत थी जो मेरे घर को बचाने के लिए बेखौफ खतर हर आग में कूद जाते। दिल्ली से कैसर पार्टी को बुलाना इनके लिए खतरे का बायस बन सकता था। निफाली पुलिस ने बज़ाहिर तो मकदबानी के कत्ल केस को पस पुश डाल दिया, मगर मैं जानता था कि इनकी इंटेलिजेंस खामोश नहीं बैठी होगी। राजदारी इनका अव्वलीन उसूल था, वो सिर्फ इस वक्त ज़ाहिर होते थे जब इनके हाथ मुकम्मल सबूत आ जाए। अगर मसला सिर्फ अब ब्रेन वॉश करने वालों की ज़ात तक महदूद होता तो उनकी पहली फ्लाइट से ही पाकिस्तान भिजवा देते और जहाँ पर मेरा महकमा इनके इस्तेमाल और सब कुछ इनसे उगलवाने के लिए मौजूद होता। मगर फ्लाइट के जाने का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं था। जब तक फ्लाइट शुरू होती है ब्रेन वॉश करने वाले न जाने कितने माजिरीन का ब्रेन वॉश कर चुके होते। पाकिस्तान जाने वाले तमाम माजिरों की जांच पड़ताल करना नामुमकिन थी। मैं बड़े मुकदमे में फंस गया था। अगर इनको हलाक कर दिया जाता तो इनको बच्चे बेयार मददगार रह जाते। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी सोच में कई रोज़ गुजर गए मगर हल कोई समझ में नहीं आया। एक रोज़ मैं चंगवा रेस्टोरेंट में शाम का खाना खाने गया हुआ। रिसेप्शन पर जो चीनी लड़की होती थी वो मुसलमान थी। इसने मुस्लिम तरीक़े से सर को ढांप रखा होता था। इस दिन मैं भी खाना खाने लगा तो वही चीनी लड़की मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि 3 चीनी मुसलमान तुमसे मिलना चाहते हैं। पिछले दिन जब आप यहाँ आए थे वो आपका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। तुम्हारे साथ तुम्हारे सफारत खाने का अफसर था, इसलिए वो आपसे मिल न सकी। लड़के ने बताया कि उन्होंने मुझे कहा था कि आइंदा जब मैं खाना खाने हुआ आऊँ तो उससे हमारे मिलने के मुतल्लिक़ बातचीत करना। लड़की ने कहा कि होटल के पास ही मेरा घर है और वो महफूज भी है, इसलिए वह आपकी इनसे मुलाकात बेहतर रहेगी। लफ्ज़ महफूज सुनकर मुझे पता चल गया कि मेरी शोहरत यहाँ पर पहुँच गई है। मैंने हामी भर ली। खाना खाने के बाद मैं इस लड़की के साथ इसके घर में चला गया। इसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया जो चाइनीज़ चीज़ों से सजा हुआ था। इसने मुझे वहाँ बिठाया और कहा कि आधे घंटे बाद वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। इसने बताया कि मुलाकात के दौरान वो भी यहाँ मौजूद रहेगी क्योंकि इन लोगों को अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती और मेरे इनके और तुम्हारे दरमियान मुतरजम का काम करूँगी। और एक बात, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दोस्त है। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह अगले किस के साथ। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।